Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So students, today we are going to start our new chapter, chapter number 10, the greater freedom fighters of India. So now let's get start this chapter. Children, you must remember the dates 1867, 1869 and 1870. These are very important years in the history of some nations. Three great men of three different nations were born in these years. Sun Yat-sen was born in 1867 in China. He was the founder and first president of the Chinese Republic. Lenin was born in 1870 in Russia. He was the leader of the Russian Revolution of 1917. He remained the head of the Russian Soviet government till his death. Mohandas Karamchand Gandhi was born in 1869 in India, that is 2 years after the Sun Yat-sen and a year before Lenin. But he never became president or prime minister. He was a moral leader, not a political leader. The life of this great Indian is extremely interesting. The purity and simplicity of his life made him immortal. The life history of his man who taught the world how to win battles without bloodshed is on which every student should know. बच्चा आपको ये तीन डेट जरूर याद होनी चाहिए कौन कौन सी 1867, 1869 एंड 1870। बच्चों ये जो ईयर्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि हमारे हिस्ट्री में बच्चे ये तीन नेशंस के मतलब कुछ चीजों को दर्शाती है। चले देखते हैं जो ग्रेट मैन इन 3 इयर्स में बॉर्न हुए थे वो कौन कौन से थे। पहले थे बच्चों sun yat-sen जो कि 1867 में चाइना में बॉर्न हुए थे, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे चाइनीज रिपब्लिक के। नाउ नेक्स्ट है बच्चों लेनिन जो कि 1870 में रशिया में बॉर्न हुए थे और वो क्या थे? रशियन रेवोल्यूशन के 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ था उसके लीडर थे। और बच्चों उन्होंने रशियन सोवियत गवर्नमेंट संभाली थी कब तक? वो उसके हेड रहे थे कब तक? अपने डेथ तक। तो बच्चों जो अब हम महात्मा गांधी जी की बात कर रहे थे वो तो ना एक पॉलिटिकल लीडर थे ना ही मतलब उन्होंने कभी पॉलिटिक्स में इतना भाग लिया। वो थे एक मोरल लीडर। बच्चों वो काफी ज्यादा ग्रेट इंडियन थे। उनका काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। उनका ये मानना था कि ब्लड शेड में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना, बैटल्स में बिल्कुल बिलीव नहीं करना। उनका मानना था कि हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि मतलब आपने सुना होगा ना अहिंसा के मार्ग में चलना, ना कि हिंसा के मार्ग पे बिल्कुल नहीं चलना। तो ये था गांधी जी का कहना। महात्मा गांधी was born on October 2, 1869 at Porbandar in Kathiawar. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. He completed his early education at school of his village. At school, Mohandas was a truly shy boy. He didn't mix free with his schoolmates, nor did he take much part in games. Long walks in the open and was the form of exercise which he enjoyed the most. अब बच्चों जो मोहनदास करमचंद गांधी थे उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 में। वो बच्चों कहाँ पैदा हुए थे? वो पैदा हुए थे काठियावाड़ के पोरबंदर में। और बच्चों उनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। उन्होंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन थी बच्चों अपने गांव में ही पूरी की थी। और बच्चों वो किसी पार्टिसिपेट मतलब गेम्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं लेते थे। वो लॉन्ग लॉन्ग वॉक्स के लिए निकल जाया करते थे जो उनका एक्सरसाइज का फॉर्म था विच ही एंजॉयड द मोस्ट। His book and his lessons were his sole companions। और बच्चों जो उनकी बुक्स थी और उनके लेसन थे वही उनके सोल कंपेनियंस थे। फ्रॉम द प्राइमरी स्कूल he was sent to suburban school and then to high school and now he had already reached his 12th year। अब बच्चों जो प्राइमरी स्कूल से ही वो कहाँ थे? वो सब अर्बन स्कूल में जाते थे, फिर देन हाई स्कूल में गए और वो अब 12th ईयर में पहुंच चुके थे। He never told a lie during his school days either to his teachers or his school fellows। बच्चों उन्होंने कभी भी अपने स्कूल के दिनों में झूठ नहीं बोला, ना तो कभी टीचर से झूठ बोला और ना ही अपने स्कूल फेलो से झूठ बोला। There was an incident which occurred at an examination during his first year at the school. Mr. Gill, the educational inspector, came on a visit of inspection. He gave his class 5 words to write a spelling exercise. One of the words was kettle. Gandhiji misspelled it. The teacher tried to prompt him with the point of his boot, but Gandhiji did not pay attention. He wanted that Gandhiji should copy the spelling from his neighbor's slate, but he thought that the teacher was there to supervise them against copying. The result was that all the boys except he were found to have spelt every word correctly. Only he had been stupid. The teacher later tried to bring the stupidity home to him out without effect.
He could never learn the art of copying. अब बच्चों यहाँ पे गांधी जी जैसे बताया हमने, उन्होंने अपने टाइम पे कभी झूठ नहीं बोला। एक दिन स्कूल में एग्जामिनेशन का इंसिडेंट हुआ था। एग्जामिनेशन में बच्चों का फर्स्ट ईयर था स्कूल का, मिस्टर गिल जो एजुकेशनल इंस्पेक्टर थे, वो विजिट पे आए थे इंस्पेक्शन की। ठीक है, उन्होंने क्लास को 5 वर्ड्स दिए लिखने के लिए, ठीक है, एज ए एक्सरसाइज। उनमें से एक वर्ड था केटल। गांधी जी ने उसे मिसस्पेल्ड कर दिया था। तो जो टीचर था इंस्पेक्शन से आया था, उन्होंने अपने बूट से उन्हें क्या करा, मतलब इशारे दिए कि वो अपने साथ वाले से क्या कर ले, कॉपी कर ले, बट उन्होंने अटेंशन पे नहीं करी। और गांधी जी चाहते थे, ही वांटेड दैट गांधी जी शुड कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम हिज नेबर्स स्लेट। अब बच्चों जिन्होंने मतलब जो टीचर्स थे वो चाहते थे कि गांधी जी उस आंसर को क्या कर ले, अपने नेबर्स के स्लेट से कॉपी कर ले, बट उन्होंने क्या करा, टीचर मतलब बट ही थॉट दैट द टीचर वाज देयर टू सुपरवाइज देम अगेंस्ट कॉपी। और बच्चों ने सोचा कि जो टीचर है वो यहाँ पे सुपरवाइज करने आया है, ना कि कॉपी करने के लिए मतलब कॉपी करने की वो अगेंस्ट है। द टीचर वाज दैट ऑल ऑफ द बॉयज एक्सेप्ट he were found to have spelled every word correctly। अब बच्चों यहाँ पे जो क्लास के जितने बच्चे थे, सब बच्चों ने सही स्पेलिंग लिखी थी एक्सेप्ट मोहनदास करमचंद गांधी। ओनली ही हैड बीन स्टूपिड, सिर्फ वही पागल कहलाए थे उस टाइम में क्लास में। बाद में टीचर ने क्या करा, उनकी स्टूपिडिटी को उनके घर तक लेके आने की कोशिश करी। बाद में बच्चे जो उनके टीचर ने क्या करा, उनकी स्टूपिडिटी को उनके घर लाने की भी कोशिश करी बिना इफेक्ट के। और साथ ही बच्चों गांधी जी जो थे, उन्होंने कभी भी आर्ट ऑफ कॉपिंग नहीं सीखी। एट द इंसिडेंट डिड नॉट in the least diminish his respect for his teacher. He was by nature blind to the faults of elder. Later too he came to know of many other feelings of on this teacher, but his regard for him remained the same. He had learned to carry out the orders of elders, not to scan their actions. बाद में बच्चों गांधी जी को पता चला कि मतलब बाद में बच्चों उस इंसिडेंट के बाद भी गांधी जी ने अपने टीचर्स के लिए बिल्कुल भी अपनी रिस्पेक्ट डिमिनिश नहीं करी। वो क्या थे, वो ब्लाइंड थे एल्डर्स के फॉल्ट से। बच्चों उनका ये नेचर था, वो कभी भी मतलब हमेशा बड़ों की क्या करते थे, इज्जत करते थे। और he came to know of how many other feelings on this teacher, और उन्हें पता भी चल रहा था कि कैसे कैसे टीचर्स एक्शन करते हैं, बट उनके एक्शंस पे कभी ध्यान नहीं देते थे, वो बस हमेशा बड़ों की इज्जत करते थे। गांधी जी was married at 13. This early marriage caused a break in his studies at high school, but by hard work he was later able to finish 2 classes in 1 year. He acquired certain bad habits in his boyhood from friends who misled him. He took to smoking and eating meat in secret, but he had a strong willpower even at that age. A sense of guilt preyed upon his conscience. He gave up smoking and eating meat because he thought he was cheating his parents by doing these things in secret. He decided that now he would build his life on the truth and honesty. अब बच्चे यहाँ पे गांधी जी जो थे, वो जब टीनेज मतलब 13 साल के हुए तो बच्चों की शादी करा दी गई थी। बट गांधी जी ने फिर भी 2 साल में बच्चे मतलब जो 2 क्लासेस थी वो 1 ईयर में कंप्लीट कर ली। बट बच्चों गांधी जी तो टीनेज के एज में थे, फिर भी क्या हुआ, वो अपने फ्रेंड्स के साथ मतलब बॉयहुड में आ गए थे, उनको गलत रास्ते पे चले गए थे, उन्होंने स्मोकिंग करी, उन्होंने मीट खाया सीक्रेट में। और बच्चों बट गांधी जी के पास स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। गांधी जी को थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ, फिर उन्होंने सोचा कि चीटिंग करना अपने पेरेंट्स से, कुछ चीजें छुपाना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तो उन्होंने स्मोकिंग पे गिव अप कर दिया और मीट खाना भी छोड़ दिया। बाद में बच्चों गांधी जी ने डिसाइड करा कि अब वो क्या करेंगे, ट्रूथ और ऑनेस्टी के रास्ते पे चलेंगे। व्हेन गांधी जी वाज 18 ही वाज सेंट टू इंग्लैंड टू क्वालिफाई एज अ बैरिस्टर। बच्चों जैसे ही गांधी जी 18 साल के हुए, उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया एज अ बैरिस्टर ताकि वो क्वालिफाई कर ले। गांधी जी he remained for 4 years and became one in 1891. Returning to India, Gandhiji set up practice at the bar, but it was not successful. When he received an invitation from Indian firm to go to South Africa as their lawyer, he readily accepted it. अब बच्चों जब गांधी जी 1891 में वापस आए 4 साल बाद एक लॉयर बनकर, मतलब गांधी जी रिटर्न हुए इंडिया, तो गांधी जी ने बच्चों बार मतलब प्रैक्टिस करी बार पर, और बच्चों वो सक्सेसफुल भी रहे। और बच्चों गांधी जी को तभी एक इनविटेशन मिला, कहाँ से, फ्रॉम एन इंडियन फर्म, कि आप साउथ अफ्रीका जाओ एज अ लॉयर, उनके लॉयर बनकर। उन्होंने
मतलब जो भी उनके पास जो ये ऑफर आया था उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। इन साउथ अफ्रीका द एंटायर कोर्स ऑफ हिज लाइफ चेंज। हियर ही वाज फेस टू फेस with the sufferings, hardships and insults, social and political, which formed the lot of Indians community in that country. Gandhiji decided to fight for their rights and made a study of the wrongs done to them. He organized his countrymen and started a struggle for justice and fair play. It was in South Africa that Gandhiji forged his weapon of satyagraha. He told his followers, hate the sin and not the sinner. अब बच्चों गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए, बच्चों उनका जब ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने वहां पे काफी बच्चे लोगों की सफरिंग्स देखी, हार्डशिप देखी, इंसल्ट देखा, जो भी उनके सोशल एंड पॉलिटिकल जो भी उनपे बच्चों अत्याचार होते वो सब देखा। गांधी जी ने यही सेम चीज बार अपने भारत में भी देखी और गांधी जी ने तब डिसाइड करा कि वो अपने राइट्स के लिए क्या करेंगे, फाइट करेंगे, साथ ही लोगों को भी बोलेंगे कि कैसे अपने वो राइट्स के लिए फाइट करें और कैसे वो सही को सही मतलब कोई गलत चीज हो रही है उसे वो सही कर सके। उन्होंने एक क्या करा, एक कंट्रीमैन ऑर्गेनाइज करा और बच्चों क्या करा, स्टार्टेड अ स्ट्रगल फॉर जस्टिस, जस्टिस के लिए और फेयर प्ले के लिए स्ट्रगल स्टार्ट करा। और फिर बच्चों साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या करा, एक वीपन उठाया जो कि था सत्याग्रह। और बच्चों उन्होंने अपने फॉलोअर्स को बोला कि सिन को हेट करो, यानी पाप को हेट करो, ना कि सिनर को जिन्होंने वो पाप किया है। Soon after the First World War, Gandhiji returned to India in 1914. Here, he plunged into the struggle of the Indian people to regain their self-respect and freedom. बच्चों गांधी जी वापस आए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1914 में इंडिया। उन्होंने देखा कि कितने इंडियन पीपल स्ट्रगल कर रहे हैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और फ्रीडम पाने के लिए। He taught the people to meet violence with ahimsa, that is non-violence and सत्याग्रह। बच्चों गांधी जी ने उन्हें सिखाया पीपल्स को कि कैसे आप वायलेंस से विद अहिंसा। बच्चों यहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे लोगों को सिखाया कि आप अहिंसा के साथ वायलेंस करो, मतलब that is non-violence and satyagraha. He said, I cultivate in my soldiers the courage of dying without killing. I believe that non-violence is infinitely superior to violence, forgiveness more human than punishment. अब बच्चों गांधी जी ने बोला कि मतलब हमें क्या करना है, लोगों को मतलब अपने सोल्जर्स को कल्टीवेट करना है बट बिना हिंसा के। दैट मीन्स हमें वायलेंस नहीं करना, फाइट नहीं करना, फिर भी हमें लोगों को फॉरगिव यानी माफ करना है, काइंडनेस के साथ ट्रीट करना है। आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड मैनी मूवमेंट्स, गांधी जी could liberate India on 15 August 1947. A very long age of slavery came to an ऑन दैट डे। अब बच्चों इतने लॉन्ग स्ट्रगल और मूवमेंट्स के बाद गांधी जी ने क्या करा, भारत को आजाद करवाया 15 अगस्त 1947 को। बच्चों अ वेरी लॉन्ग एज ऑफ स्लेवरी, यानी इतने साल इतने टाइम तक स्लेवरी की तरह काम करने के बाद अंग्रेजों ने हमारे साथ किया, हमें नौकरों जैसा ट्रीट किया, उसका खात्मा आ चुका था, यानी स्लेवरी का एंड हुआ इतने लॉन्ग टाइम बाद। उस दिन 15 अगस्त 1947 में इंडियंस कुड ब्रीथ इन द एटमॉस्फेयर ऑफ फ्रीडम, बट दे had to sacrifice many lives in achieving it. We made our town constitution which became into effect on 26 जनवरी 1950। अब बच्चों इसी के साथ लोगों ने काफी, जब भारत का बंटवारा हुआ था बच्चों इंडिया और पाकिस्तान में, तो उसी टाइम पे भी काफी लोगों ने अपनों को खो दिया था। और बच्चों इंडियन को फ्रीडम तो मिली बट साथ ही उन्हें काफी सेक्रीफाइस भी करना पड़ा। साथ ही बच्चों जब इंडिया आजाद हो गया उसके बाद क्या हुआ, आपका 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, इफेक्ट में आया। सिंस देन वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग टू ऑफ आवर नेशनल फेस्टिवल्स विद ग्रेट pomp and show. These are the Independence Day in 15 August and the Republic Day on 26 January. But unfortunately, on the demand of the Muslim League, India was divided into two, India and Pakistan. Communal riots broke out in the whole country. He advised the Hindus and Muslims both to live like brothers. अब बच्चों यहाँ पे हमने भारत में तभी हमें दो नेशनल हॉलीडे तभी बच्चों भारत में हमें दो नेशनल फेस्टिवल्स मिले जो कि थे हमारा इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को और रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। बट बच्चों बदकिस्मती से उस दिन हिंदू और मुस्लिमों के बीच में थोड़ी सी झड़प हो गई और जो हमारा पूरा भारत था वो दो चीजों में डिवाइड हो गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। तो बच्चों स्टिल इंडिया में हिंदू और मुस्लिम दोनों रह रहे थे और तब ये कहा गया कि हिंदू और मुस्लिमों को भाई बहनों की तरह रहना चाहिए। गांधी जी toured all over India and saw many evils and problems in the society. The greatest problem of India were poverty and backwardness. The peasants were oppressed under various forms of zamindari. So he worked to abolish zamindari from the Indian villages. He persuaded the people to practice simple livings and high thinking. Even children were taught to spin
khadi on the charkha. He believed that by using charkha Indians could get enough to eat and wear. अब बच्चों इतना कुछ तो हो गया था, भारत भले ही आजाद हो गया था, बट स्टिल प्रॉब्लम फिनिश नहीं हुई थी। गांधी जी ने पूरे ऑल ओवर इंडिया को टूर करा और मैनी प्रॉब्लम्स को फेस करा, उन सारी सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स थी और एविल्स थे उन सबको देखा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इंडिया की? पॉवर्टी और बैकवर्डनेस। तो बच्चों गांधी जी ने क्या करा, जो जमींदारी थे, बच्चों जमींदारी के कई फॉर्म्स थे उनको ऑपरेस्ट करा, और बच्चों साथ ही जो काफी चिल्ड्रन थे उनको क्या सिखाया, चरखा चलाना सिखाया, ताकि उनका मानना था कि चरखा चलाने से एटलीस्ट जो इंडियंस है वो खाना तो पा ही सकते हैं और पहनने लायक कपड़ा पा सकते हैं। अनटचेबिलिटी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एविल्स इन इंडिया। ही थॉट द पीपल that all of us are the sons and daughters of one supreme God, so we are all brothers and sisters. Caste and classes are made caste and classes are man-made, so we should not think anyone as untouchable. He gave name Harijans to the people of untouchable class. He adopted a girl from untouchable class and lived with her in his आश्रम। अब बच्चों यहीं पे गांधी जी ने एक प्रॉब्लम और नोटिस करी, दैट इज छुआछूत की प्रॉब्लम, अनटचेबिलिटी। उसमें देखा कि गांधी हमारे भारत में बच्चों अनटचेबिलिटी अभी भी बहुत ज्यादा है, और पहले तो बहुत ही ज्यादा हुआ करती थी कि जो कास्ट और क्लासेस के बेस पे कि छुआछूत की चीजें ज्यादा थी, मतलब आपको उन्हें छूना नहीं है, आप उनके हाथ का पानी नहीं पी सकते, खाना नहीं खा सकते। सो बच्चों ये प्रॉब्लम ज्यादा हो रही थी, और तभी गांधी जी ने बोला हम सभी सुप्रीम गॉड के बच्चे हैं, हम आपस में भाई बहनों की तरह रहना चाहिए, अनटचेबिलिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तभी गांधी जी ने क्या करा बच्चों, उन लोगों को हरिजन क्लास का नाम दिया जो अनटचेबल क्लास से आ रहे थे। उन्होंने एक गर्ल को अडॉप्ट करा अनटचेबल क्लास से, और बच्चों उसके साथ वो आश्रम में रहे। He not only preached but also practiced it. That is why the people followed him and accepted what he advised them. He asked the Hindus to open their temples for Harijans also. Thus he improved the miserable condition of the untouchables. अब बच्चों यहीं पर गांधी जी ने मतलब लोगों ने गांधी जी को काफी फॉलो करा, और फॉलो करके जो उन्होंने एडवाइस दी उनको एक्सेप्ट भी करा। और बच्चों तभी ही आज द हिंदू, उन्होंने हिंदुओं से बोला कि अपने वो मंदिर खोल दे, किनके लिए? हरिजन्स के लिए खोल दें। और बच्चों इससे क्या हुआ, जो हमारे भारत में मिसरेबल कंडीशंस थी अनटचेबल की, वो क्या हुई? इंप्रूव हुई। गांधी जी स्ट्रेच्ड out his hands to raise the status of women and to give them their rightful place in the society. He thought that the Parda system was the symbol of weakness and helplessness of Indian women, so he decided to remove it. He stressed the education of women and said that it was the only means which will enable the women to know about their rights and duties to society. अब बच्चों गांधी जी ने एक और प्रॉब्लम देखी जो कि थी वुमेन्स के रिलेटेड, जो कि थी पर्दा सिस्टम। बच्चों गांधी जी ने बोला कि पर्दा सिस्टम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि जो पर्दा सिस्टम है वो इंडियन वुमेन की वीकनेस और हेल्पलेसनेस का क्या है? सिंबल है। सो उन्होंने डिसाइड करा कि वो पर्दा सिस्टम हटाएंगे और एजुकेशन सिस्टम को लेके आएंगे, ताकि हर वुमेन पढ़ाई करे और अपने आप एनेबल हो चुके हैं, अपने राइट्स को एनेबल कर सके और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके सोसाइटी के लिए। Gandhi ji did a lot to improve the condition of the villages and village people. He wanted Swaraj in India. According to him, Swaraj means that all the villages of India should be prosperous. Our villages from the heart of our country. Village panchayats were established to remove the distress of the villagers and to give the quick and correct justice. अब बच्चों गांधी जी चाहते थे कि भारत में स्वराज आए, यानी हर गांव में क्या हो, एक पंचायत हो जो कि क्या करे, उन्हें एक क्विक जस्टिस दिला सके और करेक्ट जस्टिस भी दिला सके। तो ये था गांधी जी का मानना। When India became free on 15 August 1947, Gandhiji accepted no portfolios, so Jawaharlal Nehru was appointed the first Prime Minister of Free India and Dr. Rajendra Prasad the first President. All of us know what great appeal Pandit Jawaharlal Nehru had for the Indian masses. Gandhiji had chosen him as his most worthy disciple and successor. It was felt that the people of India listen to Nehru, Nehru listens to Gandhi ji, and Gandhi ji listen only to God. तो बच्चों यहाँ पे गांधी जी ने मतलब जब भारत आजाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, तो गांधी जी ने कोई पोर्टफोलियो एक्सेप्ट नहीं करा। तब गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को आगे अपॉइंट करा एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या करा? डिक्लेयर करा। और बच्चों हम सब जानते थे कि जो जवाहरलाल नेहरू थे वो क्या थे, हमारे इंडिया के मतलब उन्होंने काफी ज्यादा भारत को संभाला, राइट, काफी बड़े मासेस को भारत में उस टाइम पे जो क्रिटिकल सिचुएशन थी उसको संभाला। तो हमें पता था गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को चूज किया था एज अ मोस्ट वर्दी एंड डिसिपल पर्सन एंड सक्सेसर। तो बच्चों
जो जवाहरलाल नेहरू थे वो गांधी जी की बात सुना करते थे, मतलब उनके कहीं पे चला करते थे, और गांधी जी किनके कहीं पे चला करते थे, सिर्फ भगवान जी के कहने पे। तो इस तरीके से गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को मोस्ट वर्दी पर्सन चुना था। नाउ ऑल द इंडियंस वर enjoying the fruits of freedom. Our leaders were dreaming and planning for a prosperous country. Nobody knew that the end of the great apostle of peace and the Mahatma of all was drawn near. His death at the hands of a madman on January 30, 1948 was a shock not only to the people of India but to the men of peace and goodwill throughout the world. Panditji Jawaharlal Nehru spoke to his countrymen, the light has gone out of our lives and everywhere it is dark. The father of the nation is no more. The best prayer we can offer is to follow the path of truth. The best tribute which we can pay him is to carry on the noble work for which he lived and for which he died. तो बच्चों, जैसे कि हमें पता है कि भारत आजाद हो चुका था और हर इंडियन उसे एंजॉय कर रहा था। हमारे लीडर्स जो कि ड्रीम कर रहे थे और प्लानिंग कर रहे थे हमारी प्रोस्पेरस कंट्री की, वो ट्रू हो चुका था। और बच्चों, अब बात ये थी कि महात्मा गांधी बच्चों जब 30 जनवरी को, मतलब उन्होंने भारत को आजाद कराया, बट उस एंड 30 जनवरी 1948 वो डेट था जिसको किसी को उम्मीद नहीं थी कि महात्मा गांधी जी का वो दिन आखिरी दिन होगा हमारे बीच में। क्योंकि तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि नाथूराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी थी 30 जनवरी 1948 को, उनको गोली मारकर। और बच्चों, उस दिन उन्होंने अपना दम तोड़ दिया था। तभी नेहरू जी ने कहा कि जो हमारे अब हर जगह डार्क हो चुका है, जिन्होंने हमारे भारत को आजाद कराया वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन हम उन्हें एज अ नोबल पर्सन याद कर सकते हैं, राइट। और आज भी वो हमारे बीच एज अ हमारे नेशनल फादर। तो बच्चों, ये थी हमारी स्टोरी महात्मा गांधी जी की। आई होप आप सबने काफी एंजॉय करा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर. Now I will meet you in the next lecture with a new chapter. Till then, you have to revise this chapter and keep learning and keep exploring. Bye bye, students.